নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। জরুরি সেবা ব্যতীত শনিবার সন্ধ্যা 5টা থেকে ঝাড়খণ্ডে সোমবার সকাল 6টা পর্যন্ত পুরো লকডাউন থাকবে। জামশেদপুরে আগের মতোই লকডাউন থাকবে। বাকি 23টি জেলায় সমস্ত দোকান খোলা হবে। পরিস্থিতি একই রকম থাকবে, অর্থাৎ যেগুলি খোলা ছিল একইভাবে খোলা হবে। কেবল তাদের সময়সীমা বেলা 2টো থেকে বাড়িয়ে বেলা 4টে করা হয়েছে। এতে কেবলমাত্র সেলুন এবং নাপিতের দোকান যুক্ত করা হয়েছে, যা এখন খোলা হবে। ঝাড়খণ্ডের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহ স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্না গুপ্তা মিডিয়াকে এই তথ্য দিয়েছেন। জানানো হচ্ছে যে প্রথম আনলকের সময়কাল 10ই জুন সকাল 6টায় শেষ হওয়ার ছিল। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের লোকেরা আশা করেছিল যে দ্বিতীয় আনলকে ছাড় বাড়বে এবং বিশেষত রাজধানী রাঁচিতে সরকার মল ও অন্যান্য বিভাগীয় স্টোর ইত্যাদি খোলার অনুমতি দেবে। তবে দ্বিতীয় আনলক সম্পর্কিত সরকার কর্তৃক নোটিফিকেশন জারির জন্য রাজ্যের লোকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, যাতে লোকেরা জানতে পারে যে দ্বিতীয় আনলকে সরকার কি কি ছাড় দিয়েছে। बैठक में निर्णय हुआ है कि जमशेदपुर को छोड़कर जमशेदपुर में जो पहले की जो व्यवस्थाएं हैं वही लागू रहेंगी। जमशेदपुर को छोड़कर 23 जिले में सुबह से शाम 4 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी। और इस बार हम लोगों ने नवा वगैरह की दुकान जो है, सैलून वगैरह भी खोलने का निर्णय लिया है। और साथ में शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, जिसमें केवल अनिवार्य जो आवश्यक जो चीज़ें हैं, इमरजेंसी की जो मेडिकल शॉप वगैरह जो है वो सब खुले रहेंगे। बाद बाकी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। तो और आपको जैसे होटल वगैरह हैं, होटल वगैरह में जाके लोग जो हैं क्रय करके आ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग धीरे धीरे ये प्रयास कर रहे हैं कि समीक्षा कर रहे हैं कि कितना हमारे राज्य में किन जिलों में अभी जमशेदपुर थोड़ा सा हम लोग अभी जमशेदपुर को थोड़ा सा रोक रहे हैं, क्योंकि वहाँ लगातार चीज़ें अप डाउन हो रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं। इसका मतलब है कि अभी तक वहाँ पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाया है। तो हम लोग पूरी गंभीरता के साथ इस पे काम कर रहे हैं। जो 23 ज़िले हैं, जिसमें जो पूर्व की भांति 23 ज़िले में जो जो चीज़ें खुल रही थी, खाली उसमें ये सैलून वगैरह बढ़ा है और बाद बाकी सभी चीज़ें यथावत हैं, ठीक है। और एक ज़िला जो है जमशेदपुर में 2 बजे तक ही खोला जाएगा। और इम्पोर्टेंट निर्णय ये हुआ है कि शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा, केवल इमरजेंसी चीज़ों को छोड़कर। চান্ডিল লকডাউন এবং কোভিড-19 কারণে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল ও এলাকায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। জনগণকে এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে জামশেদপুরে দুটি সংস্থা ইনার হুইল ক্লাব পূর্ব ও পশ্চিম দুস্থদের সহায়তায় সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় বুধবার দলমা তরাইতে অবস্থিত খোকরো গ্রামের মোট 40 জন দুস্থ লোকের মধ্যে জামশেদপুর MGM হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডের ডাক্তার বিজয় কুমারের নেতৃত্বে দুটি সংস্থার মাধ্যমে শুকনো রেশন সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। এই সময় ডাক্তার বিজয় কুমার কোভিড-19 এড়ানোর জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা সম্পর্কেও সকলকে অবহিত করেন। সকল সংস্থা অসহায় ও দুস্থ পরিবারকে ভবিষ্যতে আরও রেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ये 40 घरों में बांटा गया है राशन, ये और भी बांटा जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर विजय मोहन सिंह है। मैं आजकल MGM के कोविड वार्ड में डॉक्टर हूं और आगे बढ़ के खाली समय में समाज सेवा में लगा रहता हूं। করোনা সংক্রমণের ভয়াবহ পরিস্থিতি রাস্তায় বসবাসরত প্রচুর প্রাণীর সামনে খাবারের সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এমতো অবস্থায় অসহায় প্রাণীদের সাহায্যের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন রাঁচির একজন যুবতী আর্চি সেন। তিনি প্রতিদিন প্রায় 200টি কুকুরকে খাওয়ান। কুকুরদের খাওয়ানোর পাশাপাশি আর্চি সেন তাদের থাকার ব্যবস্থা ও টিকা দেওয়ারও ব্যবস্থা করেন। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ लोगों से कि प्लीज़ आप लोग अपने घर के बाहर जो भी कुत्ते हैं, गाय है, उसको खाना दिया करिए।
आप अगर खुद से नहीं, हाथ से नहीं खिला पा रहे हो, कटोरी में नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं, 2 रोटी अपने गेट के बाहर रख दीजिए। हो सकता है वो फर्स्ट डे नहीं खाए, सेकेंड डे, थर्ड डे आके खाएगा ही खाएगा। उसको पता रहेगा कि रात का खाना का निश्चिंत है, वो जुगाड़ हो चुका है, वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। कहीं से वो कचरा से खाने मिले कि ना मिले, वो गेट के बाहर वो 2 रोटी मुझे मिलेगा। तो ये कन्फर्मिटी भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। অমর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ঝাড়খণ্ডের বিরসা মুন্ডার 121তম মৃত্যুবার্ষিকী পুরো দেশের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডেও পালন করা হয়। এই সময় মুখ্যমন্ত্রী আবাসিক কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন অমর শহীদ ভগবান বিরসা মুন্ডার ছবিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রীরা এবং দলের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। झारखंड प्रदेश के एक सूरवीर यहाँ के भगवान बिरसा मुंडा की इस पुण्यतिथि पर आज पूरा राज्य जिनको याद कर रहा है। ये 121वां पुण्यतिथि है और हमें गर्व है कि ऐसे लोगों ने हमें संरक्षण दिया, इस राज्य को संरक्षण दिया, इस राज्य को मार्गदर्शन करी। और आज निश्चित रूप से हम सब लोग भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और उनकी विचारों को और उनके आदर्श को हमेशा हम अपने कंधों पर लेके चलेंगे। আজ বিরসা মুন্ডার 121তম শহীদ দিবস পালন করা হয়। এই অবসরে বিজেপি কর্মীদের সাথে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দীপক প্রকাশ রাঁচির কোকারে বিরসা সমাধিস্থলে ভগবান বিরসাকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। তিনি বলেন যে যখনই ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় ছিল তারা ভগবান বিরসার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। বিজেপি তার দেওয়া দিক নির্দেশনায় এগিয়ে চলেছে। তিনি সর্বদা অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। आज उनके पुण्यतिथि पर, उनके बताए हुए रास्ते पर और जिस प्रकार से उन्होंने अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया था, उसी रास्ते पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और झारखंड की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के लिए वो आदर्श हैं। हम सब लोग आज उनकी पुण्यतिथि में हम सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करें। পোটকার বড়া সিগড়িতে বিরসা মুন্ডার 121তম শহীদ দিবস বিরসা মুন্ডা আদিবাসী সাংস্কৃতিক মঞ্চ দ্বারা উদযাপিত হয়। এই অবসরে মঞ্চ কর্তৃক জল, জঙ্গল, জমি ও জীবিকা সংরক্ষণের সংকল্প নেওয়া হয়। বিরসা মুন্ডা আদিবাসী সাংস্কৃতিক মঞ্চের দাবি বিরসা মুন্ডা যেন একজন মুক্তিযোদ্ধার সম্মান পান। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলি মুক্তিযোদ্ধাদের ছবিতে মাল্যার্পণ করেন এবং তারপরে তারা ভুলে যায় যে তাদের পরিবার আজও সম্মান পায়নি। आज अगर हम 121वां शहादत दिवस मनाते हैं तो हमें अपेक्षा होते हैं कि हम उसकी मरण की इतिहास को जानें, उसकी दस्तावेज हमें खुली किताब की तरह मिले। लेकिन ये हमें अपेक्षित है। आज झारखंड, भारत आज़ाद हुआ, झारखंड राज्य भी बना, लेकिन हमें ये दस्तावेज आज तक पता नहीं है कहाँ है कि नहीं। दूसरी है जो उसकी परिवार को सम्मान मिलना चाहिए। परिवार के साथ साथ जो उनका स्वतंत्र सेनानी का उपाधि आज झारखंड में मिलना चाहिए। भारत देश में तो नहीं मिला, तो आज झारखंड को सिफारिश करते हुए कम से कम अमर शहीद वीर बिरसा मुंडा को स्वतंत्र सेनानी के रूप में उसको सम्मानित किया जाए, जिससे उसका परिवार स्वाभिमान के साथ जी सके। জামশেদপুরের নমন সংস্থা বিরসা মুন্ডার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং ভগবান বিরসা মুন্ডা যেভাবে বলেছিলেন সেই পথে চলার সংকল্প নেন। এই অবসরে প্রত্যেকে ভগবান বিরসা মুন্ডার ছবিতে ফুল দিয়ে তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। धरती आबा, जिस झारखंड की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ और जहां की धरती ने बताया पूरे विश्व को कि अगर मां भारती को गुलाम करने का कोई प्रयास करेगा
तो सही समय पर उलगुलान होगा, सशक्त उलगुलान होगा और मां भारती के शरीर पर जो गुलामी की जंजीरें हैं उसको तोड़ने का शंखनाद कोई करेगा तो झारखंड की धरती से एक सशक्त शंखनाद होगा।